صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے پہلے تو دل میں ارادہ اور پھر اس کے بعد تیاری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ چاہے تو انشاءاللہ کل بعد ظہر نکل جائے گی. اللہ کے توفیق کے ساتھ وقت بھی پورا کریں گے. زندگی دینے والا اللہ ہے اور جو بندہ نیت کرتا اس کو پورا کرانے والا بھی اللہ ہے. اللہ ارشاد فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ و جان سے بھی زیادہ قریب. میں تمہاری رگ و جان سے بھی زیادہ قریب. انسان کے لیے ہر شے دور ہو سکتی ہے لیکن اللہ دور نہیں ہو سکتا. 70 سال سے بت کو پوجنے والا جب بھول کر یا سمت کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ کہتا ہے کہ لبیک یا عبدی لبیک، میں حاضر ہوں میرے بندے اور میں حاضر ہوں. تو اللہ رب العزت پھر کیسے دور ہو سکتا ہے؟ انسان سے ہر چیز دور ہو سکتی ہے لیکن اللہ دور نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ نے دل میں ارادہ ڈالا، اللہ نے تیاری کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے پہنچا رہا ہے. لیکن درمیان میں کچھ لوگ بات ایسی بول دیتے کہ اس سے ہمارا یقین بھی کمزور پڑ جاتا، سوچنے پر مجبور ہوتا. آج ایک صاحب کا فون آیا تو وہ کہہ رہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ کب جا رہے؟ میں کل جا رہے. سب آماز کے دو وہ آماز کے دن جاتی تمہیں، وہ کب جاتی؟ آماز کے دن جاتی تمہیں. تو بولا ہاں بھائی آماز کا دن اچھا ہوتا ہے اس لیے جا رہا ہوں. آماز اچھا ہے؟ میں نے کہا برا بھی نہیں ہے. جب آماز اچھا نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ پھر برا بھی نہیں ہے. کوئی بھی کار خیر شروع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ چہارشنبے کے دن شروع فرمایا کرتے ہیں. کون سے دن؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانا شروع کیا تو چہارشنبے کے دن نور کو پیدا کیا. چہارشنبے کے دن کس کو پیدا کیا؟ نور کو پیدا فرمایا. لیکن میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے، سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، اچھا یا خراب ہونے کے اعتبار سے نہیں، اچھا یا خراب ہونے کے اعتبار سے نہیں. جیسے سارے دن ہیں اور ویسے اتوار کا دن ہے، جیسے پورا مہینہ ہے اور ویسا اماس کا دن ہے. اماس کے دن کی کوئی ایسی خصوصیت بھلائی برائی آنے کے لیے اثر انداز نہیں کرتا، اثر انداز نہیں کرتا. لیکن بعض لوگ جو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دن دیکھو، کہ شادی کے لیے اچھا دن، دکان کے لیے اچھا دن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے جتنے کام جو کیے ہیں وہ چہارشنبے کے دن شروع کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا. اور وہ بھی اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں چہارشنبے کے دن کو برا سمجھتے تھے.
चाशुम्बे के दिन को क्या समझते थे? बुरा समझते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को तोड़ने के लिए और अपनी उम्मत के लिए इरशाद फरमाया कि तुम जो भी कार्य खैर करोगे तो कौन से दिन करोगे? चाशुम्बे के दिन। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि भाई चाशुम्बे के दिन अगर किसी की मौत की खबर सुने तो 4 जनाब सुनती करे। कितने जनाब सुनती करे? 4 जनाब। हाँ, बाज लोग बोलते रहते हैं मेरे को कि मैं कभी बोलते हैं कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, कौन से दिन खोलना? भाई चाशुम्बे के दिन खोल। तो चाशुम्बे के दिन 4 खबरा सुनती है तो आओ तेरे 4 दुकाना होती जा। एक मौत की खबर चाशुम्बे के दिन से तो 4 सुनते। अब चाशुम्बे के दिन तो दुकान खोलेगा तो कितने दुकान होंगे? फिर 4 दुकान होंगे। तो फिर मैं बोलता कि भाई देखो, कोई भी कार्य है चाशुम्बे के दिन शुरू करने के लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उनकी सुन्नत समझकर चाशुम्बे के दिन शुरू करो। बरकत के एतबार से जुमा है और जुमा सारे दिनों का सरदार है। फजीलत, अजर, नेकी के एतबार से और इबादत में ज्यादती के एतबार से जुमा है। अगर कोई काम शुरू करना हो तो चाशुम्बे के दिन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पिछली रस्म को काटने के लिए चाशुम्बे के दिन की फजीलत बयान की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नूर पैदा किया है, और वो नूर कौन से दिन? चाशुम्बे के दिन पैदा किया है। तो इसलिए उसको, जैसे हमारे मदारिस के अंदर या असातिज़ा सबक भी शुरू करते हैं, तालीमी निज़ाम, तो चाशुम्बे के दिन से ये शुरू करते हैं। यही मामूल जो शुरू ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये चांद और ये अमास और इसी तरीके से चांद ग्रहण, इसी तरीके से सूरज ग्रहण और इसी तरीके से पुण्यम और इसी तरीके से 14वीं या 13वीं और इसी तरीके से ये जो महीना आता है 13 तेजी का सफर का, ये सारे महीनों की कोई खुसूसियत नहीं है। और बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मुहर्रम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ, और एक निकाह सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ, और वो 10 मुहर्रम को हुआ। 10 मुहर्रम को हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसमें हुआ है? मुहर्रम में हुआ है। और बाज लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहिए। और मुहर्रम जो है वो कौन सा महीना है? शहादत का महीना है। अच्छी बात है, शहादत के महीने में निकाह करो। और बच्चे शहीद पैदा होंगे, बच्चे क्या पैदा होंगे? शहीद पैदा होंगे और मुजाहिद पैदा होंगे। इसी तरह से सफर का महीना है, जिसे 13 तेजी का महीना बोलते हैं। और बाज लोग उसके बारे में ये गुमान करते, ये महीना ठीक नहीं है, इस महीने में काम अच्छे नहीं होते, उस दिन में ये रहता, उसमें सास बहू मिलके नहीं रहना है, और उसके अंदर यह अपशकुन है, या मतलब उसके लिए कुछ जो है नाजेबा चीजें हैं, बुरा शगुन है उसमें। ये सब चीजें बुरी चीजें। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने की भी फजीलत बयान की। रमजान का महीना बरकत वाला है, नेकियों के एतबार से, फजीलत के एतबार से, अजर के एतबार से, और पूरे महीनों का सरदार है। और नेकियां ज्यादा मिलने रोजों की वजह से, तरावी की वजह से, और दिनों में जुमा है, ये भी नेकियों की वजह से, अजर की वजह से, अल्लाह की कबूलियत की वजह से। इसके अलावा कोई भी दिन कोई सा भी काम कर सकते। एक रिवायत, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सफर में जा रहे थे, और किसके लिए? एक मार्के के लिए जा रहे थे। तो एक नुजूमी बैठा हुआ था, और जो है रास्ते में कहा कि अली आज मत जाओ, अगर आज जाओगे तो तुम शिकस्त खा जाओ। आज का दिन जंग में जाने के लिए ठीक नहीं, आज का दिन मार्का में जाने के लिए ठीक नहीं। तो सारे साथी पीछे वाले खड़े हो गए, हजरत अली की तरफ देखने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि नहीं, चलो तुम चलो, और गए भी, और कामयाबी के साथ वापस भी आए। गए भी, मार्का भी हुआ, और मार्के के साथ फिर कैसे? कामयाबी के साथ वापस। और आने के बाद बताया कि भाई देखो, कामयाबी और नाकामी किसकी तरफ से? बीमारी और शिफा किसकी तरफ से? अच्छाई बुराई किसकी तरफ से? भाई हमारे लिए जो दिन मुनासिब है
जिस दिन में हमारे काम ठीक से बन रहे तो उस दिन में हमें जाना चाहिए। और जो जमात हमारे साथ है और वो जमात का इरादा क्या है कि भाई हमारी जमात तय हुई थी पिछले साल में, मुहर्रम आ गया तो नया साल लगेगा, 37 है तकरीबन साल, इस पर 7 साल है ना उर्दू साल, कौन सा है? 42 है। अब अगला आने वाला 43 है, यानी कि 40 पर 2 साल है। देखो 1440 पर 2 साल है। ये जो साल है पूरा हो जाएगा कब? इतवार को। और पीर का दिन कौन सा शुरू हो जाएगा? नवा साल शुरू हो जाएगा, यानी कि उर्दू साल जो है, उर्दू साल नया साल शुरू हो जाएगा। हमारी जो जमात तय हुई है 1440 पर 2 की, हम उसी साल के अंदर कहां चले जाना? मरकज चले जाना। ये सोचकर भाई हमारे जमात के साथियों ने, वो सब लोग इंशाल्लाह वहां पर पहुंच रहे हैं 9 तारीख को, यानी कि हमारे उर्दू के हिसाब से ये साल का आखिरी दिन है, चाहे वो 42 है या 43 है, सही तारीख तो मुझे भी उसका ये नहीं है। तो अगला जो आने वाला है मुहर्रम, वो 1 तारीख है, वो जो है कौन से मंगल के दिन आएगी, फिर साल के पिछले साल के अंदर ही हमें एंट्री करना मरकज में बोलने के हिसाब से, जैसे पिछले साल तय हुई थी और पिछले साल में पहुंचना। कौन सा है साल ये? 42 ये है और 43 में जाएंगे। अभी हमारी जमात 42 की है, फिर तो हम 42 में ही पहुंचना है इंशाल्लाह। और 43 का पूरा साल हमारा कहाँ लगेगा? मुहर्रम से लेकर मुहर्रम तक इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगेगा। अल्लाह कबूल फरमाए। तो माशाल्लाह हमारे आज़म भाई ने भी ज़ियाफत की और जो यहाँ पर हमें जमा होने का मौका दिया भाई, उन्होंने हमारे लिए तवाज़ो भी फरमाई कि अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के लिए ये गैर मामूली इकराम है। अल्लाह इस इकराम को बेइंतहा कबूल फरमाए। हम इसके हकदार तो नहीं हैं, लेकिन वो उनकी ज़र्रा नवाजी है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए और उनको भी और उनके बेटे डॉक्टर साहब को भी अपने रास्ते में 4 महीने निकलने की तौफीक अता फरमाए। नियत करो आज़म भाई, फिर इंशाल्लाह। और आपके लिए एक बेहतरीन बात बताता हूँ मैं इंशाल्लाह, कि जो भी जमात आए करेगी मरकज में, ये एक दावत लिया करो आप इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल भाई, मस्जिद से आदमी को जो है आँख नहीं बंद करना चाहिए। तुम्हारी कितनी बड़ी मस्जिद है तो भी आयशा मस्जिद, तो ये मरकज के मुक्तदी हैं जी। वहाँ तो आप खिलाते भी होंगे पिलाते भी होंगे, लेकिन आपका यहाँ घर है, आपका भी हक है जी। तो यहाँ भी जो है इंशाल्लाह कि भाई मेहमान आते रहते हैं, मरकज़ है यहाँ पर, ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। कि जो भी जमात है भी, एक जमात इंशाल्लाह महीने में 1-2 दावत तो कोई नहीं, तो पट्टू है ऊपर ये कोई चीज़ जो है बड़ी चीज़ नहीं है। जो अल्लाह के रास्ते में लगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका 10 गुना दुनिया में देगा, 70 से लेकर 7 लाख गुना अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी। इस अकीदे के साथ भी कुछ ना कुछ हिस्सा और आप लेते भी रहिए। किसी न किसी की दुआ लग जाएगी, कोई ना कोई होगा जिसकी दुआ लग जाएगी, तो फिर अल्लाह दुनिया का भी आखिरत का भी बेड़ा पार कर देगा। ठीक है, और भाई डॉक्टर साहब, हाँ इंशाल्लाह कुछ नियत करो इंशाल्लाह। हमारे चावल डॉक्टर हैं, रफ़ी डॉक्टर, हैदराबाद में इसमें वो मशहूर डॉक्टर है, वो मशहूर अस्पताल, हाँ अपोलो में, निम्स में, उसमें बेचारे निज़ाम की अस्पताल है ना वो, निम्स बोल के जी, उसमें है, बड़ी नौकरी में है उन्होंने। और वो चिल्ला भी लगाए और 10 दिन हमारे साथ भी वक्त लगा उनका देहरादून में। और इसी तरीके से 4 महीने का भी उनका इरादा था, लेकिन एक चिल्ला उनका पूरा हुआ। और बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे मुताल्लक में, और जो है वो कुछ ना कुछ वक्त लगाते रहते हैं। आप भी नियत करो, अल्लाह आसान करे जी। मोहब्बत की कुछ हमदर्दी भी आई है, भी होने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो और बढ़ रही है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह खानका में दुआ चली है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने कबूल किया है। मेहनत तो आपकी है, दुआ हमारी है। कबूल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो अच्छा भाई, आज की मजलिस की एक बात याद रख लो, वो क्या है भाई, दिनों में कोई दिन अच्छा कोई दिन खराब नहीं। ये महीना रमज़ान का और दिन जुमा का
یہ فضیلت نیکیوں کے اعتبار سے، اس میں کیے جانے والی عبادتوں کے اعتبار سے برکت والے دن۔ اگر کسی آدمی نے جمعہ کے دن جمعہ نہیں پڑھا، اس کے لیے وہ دن کیا ہے بولو؟ بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں رمضان کے روزے بالکل نہیں رکھا، اس کے لیے رمضان کیا ہے؟ رمضان اس کے لیے کچھ بھی حاصل، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ جی رمضان مہینوں میں دن جمعہ کا اس لیے برکت والے ہیں، اس میں کیے جانے والے اعمال اور اللہ کی طرف سے قبولیت والے دن ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ چاہے اماس ہو، پنم ہو، چاہے 13 تیجی کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، کسی بھی مہینے میں شادیاں بھی کر سکتے، سفر بھی کر سکتے جی، اور معرکے میں بھی جا سکتے، بیپار کے لیے بھی جا سکتے، دکان اوپننگ بھی کر سکتے، گھر اوپننگ بھی کر سکتے، جگہ کا رجسٹریشن بھی کرا سکتے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام کیا کر سکتے ہیں بولو؟ کر سکتے ہیں۔ کسی دن کی کوئی فضیلت بڑھ کے اور کسی دن کی کوئی فضیلت گھٹ کے نہیں ہے دنیاوی کام کرنے کے۔ یہ جو جمعے کی اور رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، جو وہ کس اعتبار سے ہیں؟ عبادتوں کے اور اعمال کے قبولیت کے اعتبار سے۔ سمجھ میں یہ بات انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمارا سفر انشاءاللہ جیسا بھی کل ہوگا 3 بجے، اور پھر واپس آنے تک کے لیے اللہ عافیت کرے، خیر کرے، حفاظت کرے، اللہ نیتوں کو پورا کرے۔ یہ ساری چیزوں کی آپ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم سب مل کر بھی دعا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچے ڈاکٹر کورس کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، آگے چل کر ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر پہنچانے والے ڈاکٹر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمروں میں برکت فرما، کمائیوں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما۔ اے اللہ میرے نکلنے کو بھی بے انتہا قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، تیاری کو مکمل فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ پوری سال میں جتنی دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ ساری دعاؤں میں ان سب لوگوں کا حصہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ لوگ جو دعائیں میرے حق میں کریں گے میرا حصہ بھی نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کا حصہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب